Hello everyone. Today we are going to study the lecture 3 of physical features of India. We had already covered the past two lectures regarding the three physical features that we have in the Indian subcontinent. Namely, we had studied about the Himalayan mountain system, wherein we looked into the longitudinal division of Himalayas and the division of Himalayas based on river system. The second physical feature that we had studied in the previous classes is regarding the northern plains. Northern plains are divided into two parts. Either they are divided on the basis of river, wherein we will look into the interplay of three major rivers, Indus, Ganga and Brahmaputra, and we had also seen at the division of northern plains based on relief features, wherein we looked into the classification of alluvial soil into four zones, that is Bhabar, Terai, Bhangar and Khadar. Moving on further, today we are going to discuss about the third physical feature that is available in our country, right? We are going to study about the peninsular plateau. Now, what does this term plateau means? The third physical feature deals with the peninsular plateau. Now, when you define a peninsula, it can be said that it is a piece of land which is surrounded by water on three sides. Now, as I had told you in the earlier classes in the previous chapters also, हम जब भी इंडिया की लोकेशन को रेफर करते हैं तो इस लोकेशन में इस रीजन का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है. द रीज़न इज दैट इफ़ यू सपोज इफ आई ड्रॉ द साउथ इंडिया पार्ट ऑफ द इंडिया, we are, as earlier told you, that surrounded by water bodies on three sides. And in the south part we have the Indian Ocean. ठीक है, जब भी हम भारत की लोकेशन की बात करते हैं तो इस लोकेशन में हम ये तीन साइड्स वाटर बॉडीज से बाउंड होने का रेफरेंस ज़रूर देते हैं. जब हमारे पास इतना बड़ा कोस्ट लाइन है विच इज 7516.6 किलोमीटर्स, जब हमारे पास इतनी बड़ी कोस्ट लाइन है तो इस कोस्ट लाइन का कुछ ना कुछ फ़ायदा तो रहता ही होगा भारत के लिए ऑब्वियसली रिगार्डिंग द लोकेशन. प्लस जो हमारा ये पूरा पार्ट है विच लाइज बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये वाला पूरा पार्ट एक्चुअली प्लेट्यू रीजन है. अब प्लेट्यू रीजन की अगर आप बेसिक बिल्कुल रूट फॉर्मेशन देखो तो प्लेट्यू की रूट फॉर्मेशन इज रिलेटेड टू वॉल्केनिक इरप्शन. द रीजन इज वी कॉल दिस रीजन एज अ बसॉल्ट रीजन. जनरली हम साउथ इंडिया वाले पार्ट को, डेक्कन इंडिया वाले पार्ट को बेसॉल्ट रीजन के नाम से जानते हैं. द रीजन फॉर दिस इज द फर्स्ट, predominantly the very favorable soil which is suitable for the cultivation of cotton, black soil also known as Regur soil, is found in this region. दूसरा, यहाँ पर igneous rocks की formation भी हम देख सकते हैं. Now how come we have igneous rocks in this part of India जब हमारे पास active volcano सिर्फ एक है, and that too we had not reported any such activity of this of volcanic eruption and इतनी new formation ये है नहीं. तो हमारे पास ये वाला part आया कहाँ से? Actually the reason traces its back to the formation of earth, जो हमने पहले फर्स्ट क्लास में पढ़ा था पेंजिया के बारे में, formation of a land mass. इसकी हिस्ट्री वहाँ से हम ट्रेस बैक कर सकते हैं. The fact that we were earlier associated with Indo-Australian plate and there was continuously movement going on within the plates. जब ये movement चल रहा था तो हम generally जो continents लाए करते हैं in the southern part, वो सारे
कॉन्टिनेंट्स का मूवमेंट देखते हैं इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। तो जब ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में मूव कर रहे हैं, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट से जो हमारा भाग चिपका हुआ था, जो जुड़ा हुआ था, वो वाला पार्ट टूटकर और आकर इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट के साथ जुड़ जाता है। सो फ्रॉम दैट, वहां पर अगर अपन एक लाइन चेक करें, तो देयर इज अ होल सीरीज ऑफ एक्टिव वोल्केनोज व्हिच यू कैन फाइंड देयर, नोन एज पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। वहां से आप इसका वो ट्रेस कर सकते हैं कि फ्रॉम वेयर डू वी गेट दिस सच अ बिग पार्ट ऑफ द प्लेट्यू रीजन। तो यहाँ पर आप इस रीजन में प्रीडोमिनेंटली जो कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, वो प्रीडोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक है, सबसे पहला प्रेजेंस ऑफ ब्लैक सॉइल, the second is igneous rocks, and the combination of both of these makes this region also known as basalt region. ठीक है, basalt region, black soil को आप रेगूर soil भी बोलते हो, which is suitable for the cultivation of cotton. अब ये जो हमारा पूरा पेनिनसुलर वाला पार्ट है, ये पेनिनसुलर प्लेट्यू दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। हमने पहले ही ये डिस्कस कर चुके हैं कि डाइवर्जेंट मूवमेंट की वजह से जब टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट हुआ, तो जब व्हेन प्लेट्स ड्रिफ्ट अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, दे क्रिएट अ न्यूअर लैंड मास, राइट। वो हम कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्टिव फॉर्म में भी देख सकते हैं। जब यहाँ पर भी ये फॉर्मेशन हुई प्लेट्यू रीजन की, तो इस फॉर्मेशन की वजह से क्या हुआ कि जो सतपुरा और विंध्याचल रेंज बनी, तो हमारा जो प्लेट्यू रीजन है, ये प्लेट्यू रीजन उन्हीं रेंजेस के ऊपर रेस्ट करता है। तो इसका जो नॉर्दर्न पार्ट है पेनिनसुलर प्लेट्यू का, हम इसको दो पार्ट्स में स्प्लिट कर सकते हैं। It could be split into two parts. The first part of this is known as Central Highlands, and the south part of this plateau region is known as Deccan Plateau. इसको अगर हम फर्दर डिवाइड करना चाहें, तो इसको हम सेंट्रल हाईलैंड्स को चार पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं: मालवा प्लेट्यू, बुंदेलखंड, बघेलखंड, एंड लास्ट इज छोटा नागपुर, which is also known as the mineral hub of India. The Deccan Plateau can be again split into two parts: the Western Ghats and the Eastern Ghats. ठीक है, अब ये रेस्ट कैसे कर रहे हैं? जो हमारे सेंट्रल हाईलैंड्स हैं, ये सेंट्रल हाईलैंड्स रेस्ट कर रहे हैं विंध्याचल रेंज के ऊपर, और जो हमारा लोअर पार्ट है डेक्कन प्लेट्यू, वो सतपुरा रेंज के बिलो लाई करता है। द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन विल बी सच: it is a kind of triangular landmass which has four divisions. It has four divisions, and below this rest the Vindhyachal range, and this part is known as the Deccan Plateau, which is surrounded by ghats. Now this division, if we look at
सेंट्रल हाईलैंड्स को हमने 4 पार्ट्स में स्प्लिट किया है। सबसे फर्स्ट है इसमें मालवा प्लेट्यू। The second one is known as Bundelkhand. The third one is known as Baghelkhand. And the fourth one is known as Chota Nagpur. Which is also known as the mineral hub of India. This region, Chota Nagpur region, is drained by river Damodar, which is also known as river of sorrow. ठीक है, अगर हमको ये जस्ट एक हिट एंड ट्राई मेथड है कि अगर हमको कभी भी मैप वर्क में पूछा जाए तो इफ यू आर नॉट एबल टू लोकेट एनी ऑफ द प्लेसेस रिलेटेड टू एनी मिनरल, just a trick that if you do not remember any of the places that where this particular mineral is found, if you approximately tick 99% on Chota Nagpur region, the answer will be correct. The reason is that all the major minerals which are extracted and mined in India, most of the minerals are found in this particular region, right? So this is known as mineral hub of India, drained by river Damodar. This is an important question which can be asked in objective type, that which river drains this, also known as river of sorrow. ठीक है, अगर हम इस रेंज के नीचे देखें तो if you can see in the diagram, we have drawn two lines in different colors. The line which is drawn in red color indicates the eastern Ghats, the western Ghats, and the line which is drawn with blue color indicates the eastern Ghats pertaining to the directions, right? Oh yes, one more thing that you need to remember here is this Chota Nagpur plateau, if you extend it towards the northeastern part of India, अगर हम इसका ईस्टवर्ड एक्सटेंशन देखें तो हमारा जो इंडिया स्टेट है मेघालय, वो इंडियन स्टेट इसी प्लेट्यू रीजन पर रेस्ट करता है, जहाँ के आपको 3 छोटे छोटे प्रोमिनेंट पीक्स याद हो अगर तो घारो, खासी, जैंतिया, वहाँ के 3 प्रोमिनेंट पीक्स हैं। और इसका जो ईस्टवर्ड एक्सटेंशन जो मेघालय स्टेट तक जाता है उसको लोकली जिस नाम से जाना जाता है दैट नेम इज नोन एज कार्बी एंगलोंग प्लेट्यू रीजन। ठीक है, हम एक चीज़ और भी यहाँ पर इससे एसोसिएट कर सकते हैं, ये जब प्लेट्यू रेंज नॉर्थ ईस्ट तक एक्सटेंड होती है तो एक्सटेंड होने में आप अधिकतर ऐसा हम सुनते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में बारिश बहुत ज़्यादा होती है, इट कॉजेज अ लॉट ऑफ रेनफॉल, और ब्रह्मपुत्र जो है वो अपने बैंक से बहुत जल्दी ओवरफ्लो कर जाती है, कॉजिंग वाइड स्प्रेड फ्लड्स। तो ऐसा क्यों है? द रीज़न दैट यू विल स्टडी ओवर हियर इज, एक तो हमारे यहाँ पर जो पैटर्न ऑफ रेनफॉल है, that pattern of rainfall is known as orographic type of rainfall. The reason why it is called as orographic is because of the fact जो moisture carrying winds हैं वो winds हमेशा एक barrier को strike करती है in the form of mountains. तो जब वो किसी barrier को strike करेंगी तो strike करने से जितना water carry कर रही होती है वो सारा water जो है वो shed हो जाता है। तो जब monsoon carrying winds during the months of monsoon जब travel करके आती हैं तो फर्स्ट प्लेस वेयर दे स्ट्राइक इज टुवर्ड्स द वेस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स की तरफ वो स्ट्राइक करती हैं, और ये स्ट्राइक करने से सबसे पहला अराइवल ऑफ मानसून, ऑनसेट ऑफ मानसून जब हम देखते हैं तो वो इन्हीं घाट से स्ट्राइक करने को देखते हैं, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1 जून, टेंटेटिव पहले 1 जून को हम मानते हैं कि अराइवल ऑफ मानसून हो गया है। यहाँ से जो ब्रांचेस हैं मानसून कैरिंग विंड्स की, ये 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो जाती हैं, डिवाइड होती हैं।
तो जो ब्रांच स्प्लिट होकर और नॉर्थ ईस्ट की तरफ चली गई, उस रेंज, उन विंड्स को हमेशा स्ट्राइक करने के लिए कॉन्टिन्यूसली बैरियर्स मिलते हैं. जैसे मैंने अभी बताया घारो, खासी, जयंतिया, तो 3 बैरियर्स हैं. बट अपार्ट फ्रॉम दैट पूरे नॉर्थ ईस्ट में आपको प्लेन्स बहुत कम मिलेंगे. मोस्टली द रीजन्स आर हिली, छोटे छोटे हिल्स हैं. वो हिल्स से कॉन्टिन्यूसली ये विंड्स जो हैं ये स्ट्राइक करती रहती हैं और इट कॉजेज अ लॉट ऑफ रेनफॉल देयर. So this is the reason that is why we can say that the pattern of rainfall that is followed in India is orographic rainfall. Moving on further, हम अपने सेकेंड डिवीजन पर आते हैं. जो ये डिवीजन ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स का डिवीजन है, इस डिवीजन को हम डेक्कन प्लेट्यू बोल सकते हैं. इन दोनों जगह के हाईएस्ट पीक्स आपको पता होने चाहिए अलॉन्ग विद देयर हाइट्स, राइट. वेस्टर्न घाट्स का हाईएस्ट पीक है अनाई मुडी, which is located in the Indian state of Kerala. और ईस्टर्न घाट्स का हाईएस्ट पीक है महेंद्रगिरी, which is located in the Indian state of Odisha. ठीक है. अगर हम इनकी हाइट्स की बात करें तो इसकी हाइट है 2637 मीटर्स की और महेंद्रगिरी की हाइट है 1501 मीटर्स की. सो the height is accordingly plus. अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि if I am traveling from west towards the east, अगर मैं वेस्टर्न घाट से ईस्टर्न घाट्स की तरफ मूव कर रही हूँ, तो which other prominent peaks am I going to locate there? तो आप एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट पीक बीच में तमिलनाडु के स्टेट में लोकेट कर सकते हैं, दैट इज नोन एज रोडाबेटा. सो दैट prominent peak lies between both of them, between the western ghats and the eastern ghats. ठीक है. अगर if you have noticed one thing, I have drawn these western ghats in a more structured form than the eastern ghats. ये आपको बहुत टूटी फूटी सी दिखेंगी, rather these are more structured. But also there is one more difference. हम जो ये घाट्स हैं ये बहुत नैरो फॉर्म में देख रहे हैं, बहुत नैरो हैं, बहुत थिन हैं, बहुत पतली हैं. जबकि अगर आप ईस्टर्न घाट्स की तरफ देखो तो ईस्टर्न घाट्स की तरफ ये जो थिकनेस है ये बहुत ज़्यादा ब्रॉड है. ठीक है. ये जो टूटा फूटा स्ट्रक्चर है, जो ब्रोकन स्ट्रक्चर है, कि व्हाई इज इट ब्रोकन, इज बिकॉज ऑफ द रीजन हमारे इंडिया की मेजर जितनी रिवर्स हैं उतनी रिवर्स मोस्टली अपने आप को बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करती हैं. तो जब वो बे ऑफ बंगाल में ड्रेन कर रही हैं तो ऑब्वियसली इफ रिवर्स कमिंग फ्रॉम अ वेरी लॉन्गर कोर्स ऑफ टाइम, तो वो इतना डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद बहुत भारी मात्रा में अमाउंट में सेडिमेंट्स डिपॉजिट करती हैं. तो जब वो सेडिमेंट्स डिपॉजिट हैं तो वो जनरली इस ईस्टर्न साइड पर डिपॉजिटेड है. ठीक है. तो ड्रेन जब वो अपना फाइनली जब ड्रेनेज बेसिन क्रिएट करती हैं तो ड्रेनेज बेसिन एक्चुअली में इसी साइड पर क्रिएट होता है, विच लीड्स टू क्रिएशन ऑफ डेल्टास, जहाँ से डिस्ट्रीब्यूटरीज बननी स्टार्ट होती हैं. तो ये ईस्टर्न घाट्स की तरफ से आपको ये जो थिकनेस है ये रिवर के सेडिमेंट्स की वजह से थिकनेस ब्रॉड दिखेगी. जबकि अगर अपन अरेबियन सी की तरफ देखें तो इंडिया के सिर्फ 2 rivers आर लाइक नर्मदा एंड तापी which drain themselves into Arabian Sea rather than draining into Bay of Bengal, and that is also because of the divergent movement जिसकी वजह से ये जो एक्टिविटी थी ये एक्टिविटी कंडक्ट हुई. ठीक है. ये जो फीचर है जो हमने शेड किया इन डिफरेंट कलर्स, इस फीचर को आप नेक्स्ट फिजिकल फीचर के फॉर्म में भी पढ़ते हो, दैट इज ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स. So the coastal plains lying between Western Ghats and Arabian Sea are known as Western coastal plains, while the plains which are lying between Eastern Ghats and Bay of Bengal are known as Eastern coastal plains. ठीक है. इनका डिवीजन पढ़ना, इनका डिवीजन कैटेगराइजेशन ऐसा है. That is the next physical feature that we are going to study. So there are 2 coastal plains,
there are western coastal plains and there are eastern coastal plains. इनमें अगर अपन डिफरेंसेस नोट करें तो सबसे पहला डिफरेंस है that towards the western side they are narrow and towards the eastern side they are broad. The next difference that we are going to see is that they are more evenly structured, whereas they are unevenly structured. The third difference is that Western Ghats cause orographic rainfall and here it splits into branches. ये मुंबई से स्टार्ट हो जाती है तो इसके नाम है कोंकण, कन्नड़ एंड मालाबार कोस्ट and towards this we have northern, first is Sundarban Delta, next is northern Sircar and the last one is Coromandel coast. This is the fourth physical feature that we are going to study. Moving on further, the next feature that we have in the Indian subcontinent is the desert. अगर हमको किसी भी जगह पर डेजर्ट को आइडेंटिफाई करना हो तो डेजर्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स हम क्या क्या नोटिस कर सकते हैं. डेजर्ट हम किसी भी जगह को बोलते हैं जब वहाँ पर एरिडिटी होती है, लो रेनफॉल होती है, प्लस आप वहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रेजेंस देखोगे सेडिमेंट्स की जिनको हम रेत बोलते हैं. तो बेसिकली यहाँ पर आपको कैरेक्टरिस्टिक मिलेंगे ऑफ रिवर सेडिमेंट्स. हमारे इंडिया में भी एक डेजर्ट है दैट इज थार डेजर्ट जिसके दो डिवीजन है. वन इज टुवर्ड्स सिंध एंड द अदर इज रन ऑफ कच्छ. ठीक है, ये वो वाला पार्ट है जो पाकिस्तान के एडजॉइनिंग है और ये वो वाला पार्ट है जो गुजरात के नज़दीक है. ठीक है, इसके कैरेक्टरिस्टिक एरिडिटी लो रेनफॉल कितनी लो 150 mm से अगर एवरेज रेनफॉल कम है तो हम उस रीजन को डेजर्ट के फॉर्म में आइडेंटिफाई कर सकते हैं. हॉट भी हो सकती है, कोल्ड भी हो सकती है. इन इंडिया वी हैव हॉट डेजर्ट. ठीक है, अब डेजर्ट के अंदर आप क्या फीचर्स हैं जो नोटिस करते हो. डेजर्ट के अंदर हम जनरली अपीयरेंस देखेंगे सैंड ड्यून्स की, रेत के टीले. ठीक है, जो सैंड ड्यून्स होते हैं वो सैंड ड्यून्स रेत के डिपोजिशन होने की वजह से बनते हैं.
ठीक है, यानी कि रेत एक साथ बहुत सारी एक ही जगह पर अगर इकट्ठा हो जाए हवा के प्रभाव से तो हम सैंड ड्यून की फॉर्मेशन देखेंगे। बट अगर अपन इस हवा की डायरेक्शन को मोल्ड करना स्टार्ट करें, चेंज करना स्टार्ट करें, तो व्हाट वी विल सी हियर इज दैट सपोज इफ द एयर इज मूविंग और द विंड इज मूविंग एट अ वेरी हाई स्पीड फ्रॉम वन डायरेक्शन, what will happen is that it will start cutting the sand from below first। जो सबसे लोएस्ट लेवल पर जो सैंड डिपॉजिटेड है वो उसको काटना शुरू करेगी। एज अ रिजल्ट क्या होगा, धीरे 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 यहाँ पर सैंड जो है वो कटना स्टार्ट होती है। सो ऐसा अगर एक क्रिसेंट शेप का अगर ड्यून बनेगा तो इस क्रिसेंट शेप के ड्यून को हम कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं रेगिस्तान का, विच इज बार्चिन्स। Alright, and the second feature that will be formed in the desert is regarding the formation of and the cutting up of sand from both the sides। अगर दोनों ही तरफ से ये फॉर्मेशन देखने को मिलती है तो what will happen is ultimately यहाँ पर अगर हम इस पार्ट को omit कर दें तो ये कैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये लगभग एक मशरूम जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है एंड इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ मशरूम रॉक्स। The name given is just based on symbolic that it resembles like it and that is why there is no such formation that we can see rocks over here। ये दोनों ही फीचर बहुत टेम्पररी सॉर्ट ऑफ फीचर्स है, हो सकता है कि आपको कभी देखने को मिल जाए, हो सकता है दैट यू आर नेवर एबल टू नोटिस इट डिपेंडिंग अपॉन द फ्लो एंड डायरेक्शन ऑफ द विंड्स, नॉट नेसेसरी दैट एवरी एंड मोर ओवर दीज आर टेम्पररी। ये टेम्पररी हैं, ये एक बार बन गए वापस से सैंड बिल्कुल फ्लैट हो जाएगी, वापस से ड्यून बनेगा, वापस से बार्चेस बनेंगे, वापस से मशरूम रॉक्स बनेंगे। सो दिस इज अ रेगुलर इंटरवल प्रोसेस which is going on, but the interval is not defined that it will be at such regular interval। all right, moving on to the last physical feature of India that we have is group of islands। हमारे पास दो ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स हैं, हमारे पास एक तरफ है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड ऑन द अदर हैंड वी हैव लक्षद्वीप आइलैंड्स। First we have Andaman and Nicobar, and second we have Lakshadweep Islands। अगर हम सबसे पहला डिफरेंस से स्टार्ट करें तो इनकी बेसिक फॉर्मेशन में ही डिफरेंस है। अंडमान और निकोबार आइलैंड्स जो हैं ये वॉल्केनिक ओरिजिन के आइलैंड्स हैं, जबकि अगर हम लक्षद्वीप का फॉर्मेशन देखें तो लक्षद्वीप कोरल पॉलिप्स से मिलकर बना हुआ है। नाउ व्हाट आर कोरल पॉलिप्स? कोरल पॉलिप्स बेसिकली जो डेड ऑर्गेनिजम्स हैं वो कई सारे ऑर्गेनिजम्स अपनी ऊपरी परत पर कैल्शियम कार्बोनेट डिपॉजिट करना स्टार्ट कर देते हैं। एज अ रिजल्टेंट काफ़ी लंबे समय तक जब हम इस कैल्शियम कार्बोनेट का डिपॉजिशन देखेंगे तो इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ कोरल। सो लक्षद्वीप आइलैंड का बेसिक ओरिजिन, बेसिक फॉर्मेशन इज बेस्ड ऑन कोरल पॉलिप्स। जो आप सेकंड डिफरेंस यहाँ पर नोटिस कर सकते हो दैट इज द कैपिटल। इट्स कैपिटल इज पोर्ट ब्लेयर और लक्षद्वीप की जो कैपिटल है that is Kavarati। ठीक है, the third difference that we can notice in both of these is that only active volcano of India, और यहाँ पर हम एक पिटी आइलैंड देखते हैं which is a bird sanctuary। ठीक, मूविंग ऑन फर्दर, अदरवाइज ये जो लैंड है ये बैरन लैंड है एंड दिस इज मोस्ट लिटरेट यूटी ऑफ इंडिया। If we see the separation of India by longitudinal extent, the longitudinal extent which separates it from India is 10-degree channel।
and here it is 11 degree channel. लक्षद्वीप को पहले कई सारे डिफरेंट नेम से जाना जाता था. इट वॉज नेम्ड एज अमेंडिव, लैकेडिव, मिनीकॉय. लेटर ऑन इट गॉट मर्ज्ड इन 1973 into one name. The group of island given is Lakshadweep. So here we are done with all the 6 physical features of India that we have. We had studied in detail about the Himalayan system. We had studied in detail about the plains. We had studied about the peninsular plateau. We had studied about the coastal plains. Today we had studied about the desert region and the group of islands. So we will continue with the next chapter in the next class. Thank you so much.